لیکن بیٹی آپ کو کسی نے آسمان کی بلندی میں بٹھا دیا ہے اور آپ اس سیٹ پر کسی مہربانی سے ہو. اب یہ تو میں سمجھتا ہوں اور سارے لوگ سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے، اور آپ اپنی جگہ پہ آپ جو قائم ہو. ابھی میں آسمان کی بلندی پر نہیں ہوں. آسمان کی بلندی پہ تو تب ہوں گا جب میں تمہارا فارم ہاؤس سیل کروں. جب تمہاری سیٹ ہی نہیں رہے گی تو تم کس طرح فارم ہاؤس سیل کرو. دیکھو مجھے پتہ چلا ہے کہ تم سائیں کا طرفداری کر رہے ہو. اگر مجھے یہ بات سچ ہوئی تو تمہارے اور میری دوستی میں دراڑ پیدا ہو جائے گی. یہ تو نے کیسے سوچ لیا کہ میں تیرے خلاف ہوں یا تیرے خلاف کوئی میں سازش کر رہا ہوں اسی وجہ. تو تم پھر یہ جان لو کہ میں جتنے بھی فارم ہاؤس ہے اسے میں اپنے لیے خرید لوں گا. ہاں تو ٹھیک ہے، اس میں کیا ہے. ارے میرا فون. ہیلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجھے ایک فارم ہاؤس چاہیے شوٹ اچھا کے لیے. مل جائے گا شوٹ کے لیے. مل جائے گا. ہاں جی ہاں. ٹھیک ہے، ہم آپ کو فارم ہاؤس دے دیں گے. جی لیکن اس کا رینٹ کچھ زیادہ ہی ہوتا ہے. ہمارے فارم ہاؤس تھوڑے سے اچھے ہوتے ہیں اور پھر تم اس کے پے کر سکو گے یا نہیں؟ بے شک کر لیں گے. اچھا ٹھیک ہے، میں آپ کو ایک دو تین فارم ہاؤس کی جو ویڈیو میں بھجوا دے دیتا ہوں میں. تو آپ کو انشاءاللہ اگر جو بھی پسند آئے گا پھر مجھے بتانا. آئیے سر، آئیے. آپ یہاں بیٹھیں سر. میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں سر؟ تھینک یو سر. سب کے بارے میں ایک ایک بات بتا دیتے ہیں کہ کون کیا ہے، کیا کر رہا ہے، کہاں ہے، کس سے مل رہا ہے، کیا مقصد ہے، وہ کرنا کیا چاہتا ہے اور کیا ہو سکتا ہے. یہ سب مجھے پتا ہے مجھے. لیکن میں ان کو سب کچھ کرنے دیتا ہوں. میں چاہوں تو فوراً پکڑ لوں، لیکن مزہ نہیں آئے گا مزہ. موقع پر پکڑو، واردات کے وقت پکڑو، پھر بتاؤ کہ سب مجھے پتا تھا. ایسے نہیں مزہ آتا. تو وہ تو اپنی ساری باتیں، ساری چال چھپا دے گا. وہ اس کو ساری چال کھیلنے دو. اس کو یہی ظاہر کرو کہ ہمیں کچھ نہیں پتا، ہمیں اس کے بارے میں کچھ نہیں پتا. تم اپنا کام کرو، بس اپنے کام سے کام رکھو. اور جب وہ سمجھ جائے گا، اس کو یقین ہو جائے گا کہ یار مجھ پر تو کسی کو شک نہیں ہے، تو پھر وہ آزادی سے گیم کھیلے گا. آزادی سے پھر پکڑنے کا موقع ہوگا، صحیح پکڑنے کا موقع. سب باتیں سامنے آ جائیں گی اور وہ بھی حیرت میں ڈوب جائے گا. یار یہ کیسے ہوا یہ میں نے کسی کو شو نہیں کیا اور ان کو کیسے پتا ہے ان کو ساری باتیں. یہ ہے میرا کام. اب دیکھو نا، میرے پاس جتنے لوگ آتے ہیں، اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں، لیکن سب کو ایک لیول پہ دیکھتا ہوں. کھلاتا ہوں، پلاتا ہوں، خیال رکھتا ہوں، احساس کرتا ہوں سب کا وہ کیا چاہتے ہیں. وہ ہر کام کرتا ہوں جو ان کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن مجھے پتا ہوتا ہے کہ ان میں سے کون صحیح اور کون غلط ہے. لیکن میں شو نہیں کرتا کہ یہ غلط ہے اور یہ صحیح ہے، کیونکہ میں پاکستان کو اپنی آن سمجھتا ہوں. اور اس آن بان والے پاکستان کے لیے جو دنیا میں روشن ہے، دنیا والے جانتے ہیں. صرف ہمارے لوگ قدر نہیں کرتے. دنیا ہمارے پاکستان کی قدر کرتی ہے اور ہم بالکل قدر نہیں کرتے. وہ اس طرح کہ یہ جتنے بھی کرپٹ لوگ ہیں یہ پاکستان میں ہی رہتے ہیں، یہ پاکستانی کہلاتے ہیں، پاکستان میں پیدا ہوئے ہیں.
लेकिन पाकिस्तान को लूटते हैं ये लोग, लूट के बाहर पहुंचाते हैं। और जो अरबों रुपये इनके होते हैं वो बाहर की बैंक में जमा होते हैं, और जब जमा होते हैं तो उस बैंक से वो मुल्क फ़ायदा उठाता है, तो सारा फ़ायदा उनको पहुंचाते हैं। ये पाकिस्तान को नुकसान करते हैं। यहाँ अगर रखें, लेकिन यहाँ कैसे रखेंगे? सारा इल्म हो जाएगा कि हाँ हमने चोरी की है, हमने गबन किया है, हमने करप्शन की है, इसलिए ये लोग यहाँ पर नहीं रखते हैं कि बात सामने आ जाएगी। हालांकि भूल गए ये लोग, सारी बात लोग समझते हैं, एक एक बंदा जानता है, लेकिन हमारा मुल्क का जो बाशिंदा है, जो रहने वाला शहरी है, वो शख्स जानते बूझते खामोश क्यों है? इसलिए कि उसके हाथ बंधे हुए हैं, उसके हाथ बंधे हुए हैं, उसको महंगाई में डाल दिया है, उसको फजूल की बातों में उलझा दिया है, बिलों में उलझा दिया है। 200 यूनिट का बिल 4000 का है तो 201 का 8000, इसमें उलझा दिया है। ये वही लोग हैं जो किसी न किसी तरह से मेरे मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं और दूसरे मुल्कों को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, और मेरे मुल्क के लोगों को, अवाम को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो ये पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं कर रहे हैं। मुझे और तुम सब लोगों को जो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, इन लोगों की निशानदेही के लिए, इनको पकड़ने के लिए इनको रोकना होगा। मैं निशानदेही तो कर देता हूँ, अकेला कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता, अकेला कर ही नहीं सकता। इनके हाथ बहुत लंबे हैं, उन हाथ को पकड़ने के लिए मुझे ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो मुझ जैसे हों और अपने मुल्क से मोहब्बत करते हों। जो इस मुल्क से मोहब्बत करेगा, जो इस परचम का एहसास करेगा, जिसके दिल में इस मुल्क के लिए इज्जत होगी, वही इन लोगों को पकड़कर कैफर किरदार तक पहुंचा सकता है। मैं साथ हूँ, मैं साथ हूँ। मैंने अकेले भी करके देखा है, और जो कुछ मुझसे हो सकता है मैं करता हूँ, छोड़ता मैं किसी को नहीं हूँ। क्योंकि दुनिया में जब पाकिस्तान की इज्जत है तो यहाँ भी इंशाअल्लाह इसकी इज्जत होगी। इसलिए ये लोग यहाँ पर नहीं रखते हैं कि बात सामने आ जाएगी। हालांकि भूल गए ये लोग, सारी बात लोग समझते हैं, एक एक बंदा जानता है, लेकिन हमारा मुल्क का जो बाशिंदा है, जो रहने वाला शहरी है, वो शख्स जानते बूझते खामोश क्यों है? इसलिए कि उसके हाथ बंधे हुए हैं, उसके हाथ बंधे हुए हैं, उसको महंगाई में डाल दिया है, उसको फजूल की बातों में उलझा दिया है, बिलों में उलझा दिया है। 200 यूनिट का बिल 4000 का है तो 201 का 8000, इसमें उलझा दिया है। ये वही लोग हैं जो किसी न किसी तरह से मेरे मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं और दूसरे मुल्कों को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, और मेरे मुल्क के लोगों को, अवाम को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो ये पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं कर रहे हैं। मुझे और तुम सब लोगों को जो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, इन लोगों की निशानदेही के लिए, इनको पकड़ने के लिए इनको रोकना होगा। मैं निशानदेही तो कर देता हूँ, अकेला कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता, अकेला कर ही नहीं सकता। इनके हाथ बहुत लंबे हैं, उन हाथ को पकड़ने के लिए मुझे ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो मुझ जैसे हों और अपने मुल्क से मोहब्बत करते हों। जो इस मुल्क से मोहब्बत करेगा, जो इस परचम का एहसास करेगा, जिसके दिल में इस मुल्क के लिए इज्जत होगी, वही इन लोगों को पकड़कर कैफर किरदार तक पहुंचा सकता है। मैं साथ हूँ, मैं साथ हूँ। मैंने अकेले भी करके देखा है, और जो कुछ मुझसे हो सकता है मैं करता हूँ, छोड़ता मैं किसी को नहीं हूँ। क्योंकि दुनिया में जब पाकिस्तान की इज्जत है तो यहाँ भी इंशाअल्लाह इसकी इज्जत होगी। ये मेरे लीडर हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान के लिए अपनी जान तुम अच्छी रखती हो। इसमें मैं बता रहा हूँ ना कि आदम खान एक बहुत बड़ा नाम, कोई इसको पहचान ही नहीं सकता।
کہ کیا کرتا ہے, کون ہے, اس کا کام کیا ہے اور کیوں اتنا اس کا نام مشہور ہے, اس کو دیکھ کر مختلف لوگوں نے اپنے لوگوں کے نام بھی آدم خان رکھ لیے. خود بذات خود یہ سب جانتی ہے, اس کو سب پتہ ہے, یہ تقریباً وہاں تک پہنچ چکی ہے کہ آدم خان کون ہے اور کیا کرتا ہے. اس کو ایک ایک بات کا علم ہے, لیکن یہ بتائے گی نہیں. جب تک میں نہیں چاہوں گا بتائے گی نہیں, کسی کو نہیں بتائے, چاہے کوئی کتنا ہی پوچھ لے اس سے. کیونکہ آدم خان ایک ایسا نام ہے کہ جو بہت فیمس ہے, اس سے لوگ ڈرتے بھی ہیں, اس سے لوگ محبت بھی کرتے ہیں, اور بس میں بتا نہیں سکتا کہ اس کو لوگ کیا کرتے ہیں, چاہتے ہیں. لیکن جتنے بھی لوگ اس کے نام سے مشہور ہوئے ہیں, تم نے دیکھا ہوگا کہ بازار میں کوئی چیز بکتی ہے, مشہور ہو جاتی ہے اس کے نام سے, تو اس چیز کے نام سے وہ دوسری چیزیں بھی نکل جاتی ہے. تم نے دیکھا ہوگا, شاید کھائی ہوگی تم نے, حیدرآباد کی حاجی ربڑی, بالکل ایسی. اب ایک حاجی ربڑی کی دکان نہیں ہے, جتنے بھی وہاں دکان ہیں سب حاجی ربڑی ہے. اب اس میں حاجی ربڑی اصلی کون ہے وہ بہت کم لوگ جانتے ہیں. وہ پرانے لوگ جانتے ہیں, وہ جو وہاں رہتے تھے. نئے لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں کہ اصلی کون ہے. اسی طرح سے آدم خان, آدم خان ایک بہت بڑا نام ہے, بہت بڑا نام ہے. اب وہ اتنا فیمس ہے کہ لوگوں نے اس کے نام سے اپنے نام رکھ لیے ہیں. آدم خان. کوئی کیا کر رہا ہے, آدم خان. اچھا کر رہا ہے, آدم خان. برا کر رہا ہے, آدم خان. لیکن بس اپنے نام کو فیمس کرنے کے لیے لیبل لگا لیا ہے آدم خان. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ملک ایسے نہیں ملا. آپ دیکھو چاروں طرف نظر دوہراؤ, یہ ملک بڑی قربانیوں سے ملا ہے. اور تم لوگ کیا کر رہے ہو, تمہیں تو پلیٹ میں ملا یہ سب کچھ. اور میں تم سب کو اس کی حقیقت بتاؤں گا. تم ایک ایک بات نوٹ کرنا, اور میں تمہیں اس دماغ سے بتاؤں گا جس دماغ میں ساری چیزیں محفوظ ہیں. قربانیاں دے کے حاصل ہوا یہ ملک میرا. ہاں, مسئلے مسائل ہیں یہاں کے, اور ہم حل کریں گے مسئلے مسائل. میں ایک ایک مسئلے پر آپ سے رائے بھی لوں گا, آپ سے بات بھی کروں گا. آپ میرے ساتھ ہو. آپ کیا کہتے ہو, آپ دماغ سے بتاؤ, لکھ کے دو مجھے رائٹنگ میں. میں رائٹنگ میں چاہتا ہوں تم سب کی ایڈوائز, کیونکہ ملک کو آگے لے کے چلنا ہے. ہم نے ملک کو آگے لے کے چلنا ہے. ٹھیک ہے سر, لیکن ہم کیا کریں؟ آپ بس انتظار کرو, صرف انتظار کرو. جیسے موقع لگے چوکا مارنا ہے. ہمیں لوگوں کی خدمت کرنی ہے, گیس کے حوالے سے, سیوریج کے حوالے سے. سر اگر آپ ہمیں موقع دیں. آپ ایک میری بات سنو, پانی کا مسئلہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. سیوریج, پانی ہر کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے. یہ کرنا پڑے گا, اور میں کروں گا. میں تمہارے ساتھ ہوں. تم میری کال کا انتظار کرو, اور ایک کال کے اوپر میرے ساتھ کھڑے ہونا. سمجھ آیا کچھ تمہیں؟ اور کوئی بات کا پوچھنا چاہتے ہو تو پوچھو. باہر دیکھو لوگوں کی لائن لگی ہے, اور سب یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ ملک کو آگے کیسے لے کے چلنا ہے. اور میں یہاں پر بیٹھا کس لیے ہوں؟ اس ملک کو ترقی دینی ہے. سر ہم کس طرح ملک کو ترقی دے سکتے ہیں؟ کرپشن ہے. اچھا, ہم کیسے دے سکتے ہیں؟ اب تم ایسی باتیں کرو گے میرے سامنے, مجھے بتاؤ گے. میں جو دن رات لگا ہوا ہوں اس کی کوششوں میں, اب تم مجھے بتاؤ گے. لیکن آپ یقین کرو, اگر تم ساتھ دو گے تو میں آگے لے کے جاؤں گا ملک کو. مسئلے مسائل ہر جگہ ہوتے ہیں, ان کا حل بھی ہوتا ہے, اور ہم کریں گے حل. آپ میرے ساتھ رہنا, میرے ساتھ رہنا. دیکھو میں کرتا کیا ہوں. ایک ایک مسئلے پہ پوری ٹیم بٹھا دوں گا. ہر
हर जगह काम काम और काम होगा। बस 5 वक्त की नमाज जिस तरह होती है इस तरह हम काम करेंगे, अपने काम पे छा जाएंगे। मैं हूं तुम्हारे साथ, मैं हूं ना। बोलो, खुदा के लिए मान जाओ मेरी बात और अपने आप को हाजिर कर दो काम के लिए। करोगे? बोलो। हाँ, बात सुनो मेरी, दिल खोल के सुनना। ये काम सर पे बांधने वाला है, आपको निकालेगा और हम हर मसले का हल ढूंढेंगे। जब मसला होता है वहाँ, समझे? बीमारी उल्टी आती है, इसी तरह मसले से पहले हम पहुँचेंगे और उसको हल करेंगे। जी जी। बोलो, ना नहीं चाहिए मुझे, की गुंजाइश ही नहीं है। जी साहब। हाँ, ये हुई ना, अब मज़ा आएगा काम करने का। हाँ, देखो ना वाले लोग नहीं हैं जिन्होंने ना करना, जाओ घर पे जाओ भाई, घर पे जाओ। काम चाहिए, काम। मुल्क मुश्किलों में फंसा हुआ है और आज अगर हम नहीं करेंगे आने वाली नाफ नहीं करेंगी, ये याद रखना। कान खोल के सुन लो, हाथ जोड़ता हूँ तुम्हारे आगे, काम में ध्यान दो। रोज निकलो, मसाइल का हल ढूंढो। अगर नहीं होता तो मुझे बताओ, मैं बताऊंगा, मैं करके दिखाऊंगा मसला कैसे हल होता है। मेरी ज़िंदगी गुजर गई ये काम करते, सोशल वर्क मेरी जान। जब तक मैं सोशल वर्कर नहीं था मुझे एहसास था, जब एहसास हुआ और इस काम के लिए अकेला निकल गया, और अकेला निकला और लोग जुड़ते चले गए। जैसे दिमाग में आ रहा मैं ऐसा काम करता रहा। बेलौस लोगों के मसाइल हल किए मैंने, घर में नहीं बैठा। क्या समझते हो काम ऐसे ही हो जाते हैं? ये देख रो, ये मेरी टोपी, जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ देनी पड़ती है, रखनी पड़ती है, और काम होता है मेरा। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने हमेशा मुझे कामयाब किया है और मैंने वहाँ काम किए हैं आपकी सोच भी नहीं है। कहीं आपसे कोई मिलने आया है? मैडम अरे ऐसे ही अंदर ले आया इसको, फिर बोलते कोई मिलने आया है। तुम पहले बताओ तो, मेरे को क्या पता ये कौन है, ये कौन है, कैसे आई। तुम्हें चाहिए उनको बाहर खड़ा करो, पता नहीं कौन है, फिल्म बनाए, पता नहीं क्या है। तब देखो हथियार तो नहीं, हाँ हथियार नहीं, चल उधर रखे गली। हाँ मैडम बोले। सर मैं इसलिए आई हूँ कि मेरी सौतेली माँ है ना, वो मुझे बेचना चाहती है। वो जो उस वक्त तुम तो उस वक्त बनी हुई थी, बड़ी मॉडल है, बड़ा स्टाइल मार रही थी। पेठो वाले तुम चुप रहा, पेठो से ये वीडियो इसका रिकॉर्ड करो, इसका कैमरा देखो, कैमरा भी चेक करना, बैठो इसके साथ, इसका वीडियो भी बनाता रहे। हाँ मेरे को अभी बताओ, हाँ सारा सिस्टम हिस्सा ले लो, इसको पता चले। हाँ अभी बताओ, कोई अंदर कोई मीडिया, कोई रिपोर्ट, कोई चीज। नहीं सर ऐसा कुछ भी नहीं। हाँ बोलो। दरअसल ये है ना कि वो मुझे बेचना चाहती, मेरी सौतेली माँ है। तुम अंदर कैसे? मुझे किसी ने आपका पता दिया था। मैं तुम्हारे पीछे अंदर आ जाऊं, फिर तुम कहीं घर के अंदर घुस जाओ, मैं तेरे पीछे चलाऊं, तुम बोलोगी बदतमीज तो थप्पड़ मार देगी मेरे को, फिर हम भी थप्पड़ मारेगा, फिर तुम क्या करेगा? तुम ऐसे ही अंदर आ गई, तुमको मिलना था बाहर में, तुम इसको नहीं ला। तुम मेरी बात सुनो, ये लोग हैं शरारती, मेरा नाम है, और मेरे काम में एक औरत थी, देखा नहीं जेल में पड़ा हुआ खान भाई, किसी पे भरोसा नहीं करो, भरोसा करेगा वही मरवाएगा। सारा दिन
तड़पता हूँ। जरदारी देखो कितना सियाना था। ऐसे रिश्ते, ऐसे ही तुम्हारा बाप है, एक बेगैरत आदमी है, और तुमको जलील करने के लिए मेरे पास भेज दिया। कितने अच्छे हैं। और शादी तो तुम्हारी हो गई? नहीं, शादी नहीं हुई है अभी। ठहरती रहती। खान मुझे कह रहा था मेरा निकाह हो। खान को मुझे कह रहा था टेलीफोन पे, खान मेरा एक दोस्त है, वो कह रहा यार ये हीरो में आऊँ। मैंने कहा क्यों? बोले मेरा चक्कर चल। मैंने कहा चक्कर किससे चल रहा है? रूबी की बेटी से, रूबीना से। मैंने कहा रूबी की बेटी रूबीना, ये रूबीना, रूबी, मैडम रूबी और डाइट। मैडम रूबी को मैंने 2 करोड़ दिया। अच्छा। मैडम रूबी एक बेहतरीन लुक और सबसे पैसे बढ़ोतरी के लिए मुझे तुम ये काम नहीं। जब तो आपके पास इधर आए। उठो, मुझे सब पता चले मेरे साथ हो। इसलिए तो आपके ऐसे ही लगा पाकिस्तान का मकसद क्या खाओ क्यों निकल गया। तुम्हारा तो मुंह भी ऐसा है, अल्लाह रहम था। मैं तो खान अल्लाह बलोच खान, ये एक इनाम है, काम दूसरा है। नाम जब मेरा लिया जाता है ना, 100 नाम मिलते हैं तो फिर एक नाम बनता है। जानती हो तेरी माँ मेरी बहुत पुरानी दोस्त थी। क्यों? लेकिन आप मेरी माँ को कुछ भी नहीं बताइएगा। तेरी मैं तो- माँ के चक्कर में तो 2 करोड़ को दिए। ये तुझे पता ही नहीं। चक्री कौन? चक्री वाला है। तेरी माँ वो सोती नहीं है, तो उसके पीछे लग मालूमात हासिल करो। ये करती क्या है? तूने वो लाइन तो नहीं मारी? नहीं नहीं। अरे लाइन तो लगी भी लग रही है। टच देखो एक पोज हो जाए, ये एविडेंस है। अगर तुम मुकर जाओ तो मेरा एविडेंस तुम्हारे पास होना चाहिए। कितनी खूबसूरत ये भट्टी की बेटी तो नहीं हो सकती। ये कोई तो गड़बड़ है, कोई तो चक्कर है। मुझे लगता है तुझे उठाया गया, नहीं, मैं भट्टी की तुझे बेटी हूँ। उठाया गया है। तेरा बचपन इन्होंने खराब किया है, इसलिए कि ये प्राणी गुंडो है। अब पता चला है कि भट्टी ताल्लुकात समझ में नहीं आ रहा इस माशरे में हो क्या। भट्टी के ताल्लुकात पैसा लिया है, पैसे के चक्कर में हर आदमी से पैसा पटोरा है और शादी बुला दी। शादी में तो मुझे उस वक्त शक हो गया जब रेम्बो उसका शक्ल देखो, उसको हीरो ले लिया, उससे पैसे ले। हर जगह से माल कमा रहा है, पीछे पट्टी आ रहा है। मैंने कहा ये तो बाथरूम गया था, देखा क्यों? मैंने उसको उधर देखा था। मैंने कहा ये छुप गया है, एक आदमी आया इसे छुप गया, फिर बाथरूम से निकला। ये क्या किया इसे? पता चला बैठी था, फराट करके निकला। आदमी इसको ढूंढते हुए मुझे बोला कोई इधर देखा है? मैंने कहा अभी तक मैंने किसी को नहीं देखा। मैंने इसी को देखा था भागते हुए, फिर निकला। ये बहुत बड़ी चेन है, मैंने इग्नोर किया है। तो मैं मिला था याद रोड पे कोई कैसे खड़ी थी, माँ तुझे देखकर मैं समझ गया था मुझ पे इलाज मार रहे। मैं भी तुम्हें देखा, मैंने देखा था, डर नहीं था, देखूंगा नहीं, खड़ी है तो उसकी भी बच्ची है, हमें क्या। बट्टी की माल और दुपट्टा पहन के चला था, नजर न लगे,
इसको बाहर छोड़ के आओ, इधर देख। आइंदा जब भी आए तुम इसके साथ यहाँ अंदर भेज देना, ऐसे नहीं तुम भी मुंह उठाई। ये तो की बात है, ये मेरे को तो खा नहीं, मैं इनको जानता हूँ ये क्या चाहते हैं। कल आए लाइट एक ही है, आदमी मरो नहीं, आदमी मरो, इंसान का कदर करो, प्यार करो सबसे। ये हर कोई चाहता है फ्रॉड, धोखा, जबरदस्ती। हाय पाकिस्तान और मौजूद है पाकिस्तान में पाकिस्तान का आर्श कौन सा बाहर की जाए। हाँ, तो जैसे आपको पता है कि ये एक प्रोड्यूसर है, हमारे ड्रामे के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ कि अच्छा, तो आप वो हैं। तो अगर हम मिलके काम कर रहे हैं तो अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर ये हमारे साथ हाँ हम अपने प्रोडक्शन से एक नया प्ले करना चाहते हैं, तो शाह साहब ने कहा कि अगर आप हमारे साथ एग्री हैं और आप हमारे साथ काम करना चाहती हो तो हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा तो ठीक है, कोई मसला नहीं। तो आप बताएं किस तरह का काम क्या करना चाहते हैं, फिल्मों का या ड्रामों का? ये तो पहले फिल्म करना चाहते हैं, इन्होंने कहा कि हम फिल्म करेंगे, तो अब अगर आप एग्री हैं तो फिर हम काम शुरू करते हैं। लेकिन हाँ क्यों नहीं। और लेकिन आपका बजट क्या होगा, अब ये तो बताएं मुझे, और आगे फॉर्मेलिटीज जो निभानी है वो सब कैसे करेंगे आप? तो काम करने में तो कोई टेंशन नहीं है मुझे, मैं आर्टिस्ट हूँ, आप लोग तो जानते हैं मुझ जैसी। तो हम चाहते हैं कि ये फिल्म आउट ऑफ कंट्री में हो, क्योंकि हम ठीक है, पहले हम ओके, नारायण कहवान सो स्वीट, वाह। तो पहले हम तो नारायण कहवान में काम बहुत कर चुके हैं, वो चाहते हैं। और मैं भी यही चाहता हूँ कि अगर ये इनका हमारा साथ हो तो मैं जाके कनाडा में एक फिल्म करूं और स्विट्जरलैंड में उसके गाने पिक्चराइज। तो अगर आप हैं तो फिर इंशाल्लाह। हाँ मैं भी बिल्कुल 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 यही है, अगर आप चाहते हैं तो इंशाल्लाह हम आपके एग्रीमेंट साइन करवा देंगे, और जो भी होगा हम आपको एडवांस पे भी कर देंगे। लेकिन ये है कि तो ठीक है, आप ओके बस ठीक है, मैं डॉक्यूमेंट्स तैयार कर देता हूँ। हाँ करवा लें आप मेरे ख्याल से डॉक्यूमेंट्स तैयार, तो फिर मुझे बता दीजिएगा, मैं साइन कर दूँगी। ठीक है ठीक है ठीक है, आप अपना ख्याल रखिएगा, आप अपना बहुत। तो फिर करते हैं इंशाल्लाह। पासपोर्ट मुझे दे दीजिएगा ताकि इस पर काम कर वीज़े लगा लेंगे। हाँ वीज़े लगाना तो चाहिए, क्योंकि वीज़े के बगैर तो काम नहीं चलेगा। पासपोर्ट दे देता कि हम उसको वीज़ा लगाएं, ठीक है ना? जी जी, वो तो मुझे सब पता है कि वीज़ा लगवाने के लिए पासपोर्ट चाहिए। बस ज़रा सा अब हमारे ये डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो जाए तो फिर हम इंशाल्लाह काम शुरू करते हैं। ठीक है, हो गया, मैं जा रहा हूँ। अल्लाह हाफिज़।